Dear students, welcome to NIT Polytechnic online learning platform. We bring you the most attractive digital format. Myself, Professor Anand Giradkar, Senior Lecturer, Department of Civil Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today we learn Unit 2, Theodolite Surveying, and topic is 2.10. This is the last topic of this unit. Now, in last lecture, we learn measurement of vertical angle by transit theodolite. Okay. Then in this lecture means after completion of this video lecture, student will be able to CO map, prepare plans using theodolite survey, LO, compute latitude, departure, conjugative coordinate, independent coordinate from the given data, and PO map are PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9 and PO10. Now, traverse computation. Dear students, observe this image. It is just like as graph. You know already graph. So, this is the y-axis as per graph and this is the x-axis as per graph. In graph, when we draw a graph, we give the more importance in x-axis. But in traverse computation, we know that the north direction is important. So, in surveying, north direction is important and north direction is along the y direction. So, when we write the coordinates in graph, we give the importance of x coordinates and write the first x coordinate and then y coordinate. But in traverse computation or theodolite surveying, we give the importance of n coordinate and then x, then e coordinate. Okay, so north and south direction coordinates is known as latitude if the line or coordinate or point lie along the first quadrant, then that is the positive, means along the north direction the point is known as positive direction and along the south that is the minus, and point lies on north and south direction is known as latitude. And if the point lies on east or west direction is known as departure, and if the point lies in right direction, right hand side or eastward, that is the positive, and if the point lies in westward or west direction or left side, then that is the negative. Okay, so latitude we will discuss later on. Latitude, the projection of survey line parallel to the meridian or north or south line is known as latitude. Latitude मतलब क्या होता है कि और नॉर्थ और साउथ लाइन को जो भी लाइन पैरेलल होती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड ऑफ दैट ट्रेवर्स. ओके, द प्रोजेक्शन ऑफ सर्वे लाइन पैरेलल टू द मेरिडियन, मेरिडियन मीन्स नॉर्थ एंड साउथ लाइन, is known as latitude or north south line. Okay, then departure, the projection of survey line
परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन, मीन्स नॉर्थ और साउथ लाइन को जो लाइन परपेंडिकुलर रहते हैं, और पैरेलल टू द ईस्ट वेस्ट लाइन, या ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट रहेगा और यहाँ पे वेस्ट रहेगा, तो ईस्ट वेस्ट लाइन को अगर आप बोलते हैं तो पैरेलल आएगा। मीन्स डिपार्चर की डेफिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, द प्रोजेक्शन ऑफ सर्वे लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन इज नोन एज डिपार्चर, और द प्रोजेक्शन ऑफ सर्वे लाइन पैरेलल टू द ईस्ट वेस्ट लाइन इज नोन एज डिपार्चर। Okay, so latitude can be calculated by formula L into cos alpha, where L is the length of that side. Means suppose this is the line AB. So A is point at the origin. So coordinate of A is 0, 0. Means this is the origin. Means first write the latitude, means not direction, means 0 and departure 0. But B, so write the vertical distance. Vertical distance means latitude and horizontal distance means departure. मीन्स जस्ट लाइक एज ग्राफ, ग्राफ में जैसे अपन पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखते थे, और बाद में वाई कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस लिखते हैं, तो इसमें उसके जस्ट अपोजिट लिखना है। पहले अपन वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स लैटिट्यूड लिखेंगे, और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब डिपार्चर लिखेंगे। सो लैटिट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड बाय एल कॉस अल्फा और थीटा, जो भी यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ओके, एंड दिस एंगल इज द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ओके, सो दिस इज द, बट दिस इज द रिड्यूस बेरिंग, रिमाइंड इट, दिस एंगल मस्ट बी रिड्यूस बेरिंग, इसमें जो भी एंगल रहेगा ये रिड्यूस बेरिंग वाला रहेगा। ओके, सो लैटिट्यूड इक्वल टू एल कॉस थीटा अल्फा, जो भी एंगल रहेगा, डिपार्चर इक्वल टू एल इंटू साइन अल्फा, ओके, एंड दिस एल इज नोन एज द लेंथ ऑफ लाइन और लेंथ ऑफ साइड, ओके, एंड दिस इज द रिड्यूस बेरिंग ऑफ line. This is the reduced bearing of line, okay, where alpha is the bearing angle and L equal to length of AB. Okay, then next, this is also a traverse computation. So this point have a two coordinates. First is the y1 and this is the x1. So coordinates of A point is y1 and x1. Similarly, B as y2 and this x2. This distance x2. Okay. And C is the y3 x3 and D is the y4 x4. So independent coordinate मतलब क्या होता है कि the coordinate of any point with respect to the common origin are known as independent coordinate. Okay, so common origin is the this, मतलब x और y एक्सिस जहां पर भी क्रॉस होते हैं is the common origin. Okay, and this point have the coordinate 0 and 0. Okay, लेकिन ट्रैवर्स कंप्यूटेशन में अपन सबसे पहले लैटिट्यूड लिखते हैं, मींस y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सो 0 0, ओके, and this drawing is lies in first quadrant, so all the coordinate at first quadrant is positive and positive. Okay, ये जैसे अपन ने कंप्यूटेशन जैसे किया था कंपास का, सेम कोऑर्डिनेट इसमें भी यूज होता है। ओके, सो फर्स्ट गिव्स द y कोऑर्डिनेट एंड देन इज द x कोऑर्डिनेट। सो ओरिजिन से वो पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। मतलब सपोज पॉइंट A हैविंग ए कोऑर्डिनेट y1 एंड x1, सो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मतलब ये वो पॉइंट से ये पॉइंट का
सबसे पहले हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, तो लिखते समय सबसे पहले अपन वर्टिकल डिस्टेंस लिखेंगे। मीन्स ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन से मीन्स y1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन से ये डिस्टेंस मीन्स पैरेलल टू द वो मेरिडियन, मेरिडियन को जो पैरेलल है वो पहले डिस्टेंस लिखेंगे, उसके बाद में हॉरिजेंटल डिस्टेंस मीन्स फ्रॉम नॉर्थ साउथ लाइन से हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करेंगे। सो the coordinate of any point with respect to the common origin are known as independent coordinate. Okay, then second is the, it is also called as total latitude and total departure. Okay, then next is the conjugative coordinate. Conjugative coordinate मतलब क्या होता है कि ये हो गया x1 y1 is the coordinate, is the independent coordinate of point A, and x2 y2 and x2 is the independent coordinate of point B. So point B is the same distance from A? No, the distance of B from A have differ than origin distance. So point B इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस अगर निकालना है ये के कंपैरिजन में, सो y2 डिस्टेंस से y1 डिस्टेंस अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, इट इज ऑफ कोर्स वो माइनस में आएगा, मतलब ये पॉइंट के से कंपैरिजन में बी पॉइंट डाउन में रहेगा। ओके, एंड वैसे x2 माइनस x1। ओके, मतलब पहले पॉइंट के कंपैरिजन में दूसरे पॉइंट कितने दूरी पे है, ये इसके जो डिस्टेंस मिलेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेटिव कोऑर्डिनेट। द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट with reference to the previous or preceding point are called conjugative coordinates. Okay, all the four definitions are very important in the exam point of view. Okay, so independent coordinate मतलब कौन से कि जो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है तो ओरिजिन से ये पॉइंट का वर्टिकल, सबसे पहले वर्टिकल डिस्टेंस कितना है और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है ये पॉइंट का, उसके बाद में बी पॉइंट का अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, पहले वर्टिकल डिस्टेंस लिखेंगे मींस लैटिट्यूड लिखेंगे और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखेंगे, है ना। सो कोऑर्डिनेट्स इज नथिंग बट द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन से अगर वो डिस्टेंसेस अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, और प्रीवियस पॉइंट के कंपैरिजन में जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव कोऑर्डिनेट्स। ओके, देन नेक्स्ट is the balancing of traverse. Dear students, in last year we already draw the traverse by compass. So same traverse can be drawn by the theodolite. Okay, so balancing of traverse मतलब जैसे कि उसमें अपन ने एरर निकाला था और एरर में अपन ने करेक्शन वगैरह निकाल के उसका फोर साइड और बैक साइड जैसे अपन ने उसके कैलकुलेट किए थे और करेक्शन करके अपन ने फोर साइड और बैक साइड प्रॉपर करके बाद में फिर ड्रॉ किया था, तो इसमें भी वैसे ही सेम है। बैलेंसिंग मतलब प्लस और माइनस दोनों भी अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। द ऑपरेशन ऑफ अप्लाइंग करेक्शंस to the latitude and departure is known as balancing of traverse. Okay, तो theodolite के इसमें क्या है, the operation of applying corrections to the latitude and departures
is known as balancing of traverse. So summation of latitude equal to 0 और summation of departure equal to 0, मतलब कि लैटिट्यूड, सभी लैटिट्यूड के अगर अपन एडिशन करेंगे तो 0 आना चाहिए और सभी डिपर्चर का एडिशन करेंगे तो 0 आना चाहिए। अगर उसमें करेक्शन रहेगा तो माइनस या प्लस में अगर है तो उसमें इज नॉट अ बैलेंसिंग ट्रैवर्स। ओके, द सम ऑफ द नॉर्थिंग शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द साउथिंग। अभी नॉर्थिंग और साउथिंग मतलब क्या, जैसे कि अपन ने पहले वो ग्राफ देखा था कि एखादा पॉइंट अगर ओरिजिन मतलब ओरिजिन के अप साइड में है तो इज नोन एज द नॉर्थिंग, मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ के साइड में है तो उसको बोलते हैं नॉर्थिंग, और साउथ के साइड में है तो उसको बोलते हैं साउथिंग। सो नॉर्थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड साउथिंग इज ऑलवेज निगेटिव। ओके, द सम ऑफ द ईस्टिंग should be exactly equal to the sum of the westing. Easting मतलब towards the east it is positive, and westing means toward the west side and it is the negative. Okay, then traverse can be balanced by two method or rules known as Bowditch rule and second is the transit rule. We can see one by one in detail. सो बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स बाय बाउडिच रूल, बाउडिच रूल से बैलेंसिंग अगर करना है ट्रैवर्स को तो कैसे करेंगे, इसके लिए सम रूल्स हैं। दिस रूल्स आल्सो कॉल्ड एज कंपास रूल। ओके, इट इज यूज्ड टू बैलेंस द ट्रैवर्स व्हेन द एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट्स आर इक्वली प्रिसाइज। मतलब कि जैसे अपन ने कंपास ट्रैवर्सिंग किया था उसमें अपन ने जो लाइन का लेंथ है वो टेप से गिना था या चेन से गिना होगा, और जो एंगल है दो लाइन का वो अपन ने कंपास से गिना था, लेकिन इसमें अपन ने थेओडोलाइट से अपन उसका मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल। सो इफ द लेंथ मींस लीनियर मेजरमेंट और एंगल मींस एंगुलर मेजरमेंट, दोनों भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तब अपन जो ट्रैवर्स को बैलेंस करना है तो अपन बाउडिच रूल यूज करेंगे। ठीक है, बाउडिच रूल कब यूज करते हैं, जब एंगुलर और लीनियर दोनों भी मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रिसाइज है ना, इंपॉर्टेंट है, तब अपन बाउडिच रूल यूज करते हैं। या बाउडिच रूल में एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट्स आर इक्वली प्रिसाइज, दोनों को भी सेम इंपॉर्टेंस है, जितना इंपॉर्टेंस एंगल को है उतना इंपॉर्टेंस लेंथ को भी है। ओके, देन बाय दिस रूल द टोटल एरर इन लैटिट्यूड एंड इन डिपार्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ साइड। क्योंकि लेंथ के बराबर एंगल भी इंपॉर्टेंट है, तो एंगल में अगर कुछ करेक्शंस है ना, अगर वो लैटिट्यूड है डिपर्चर, लैटिट्यूड मतलब क्या आएगा इसमें नॉर्थिंग और साउथिंग, नॉर्थिंग पॉजिटिव और साउथिंग निगेटिव, डिपर्चर मतलब क्या आएगा ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्टिंग इज द पॉजिटिव एंड वेस्टिंग इज द निगेटिव। तो इन दिस रूल द टोटल एरर इन लैटिट्यूड एंड डिपर्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ साइड। ओके, अपन बाद में इसका फार्मूला भी देखते हैं तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। दिस रूल इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन ट्रैवर्स एडजस्टमेंट। ओके, देन फार्मूला यूज फॉर करेक्शन इन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में करेक्शन करना हो या डिपार्चर में करना हो तो उसका फार्मूला क्या है, करेक्शन इन लैटिट्यूड इक्वल टू टोटल एरर इन लैटिट्यूड इनटू length of that side divided by perimeter of traverse. Okay, perimeter means addition of all the length of that sides. Okay, then अगर करेक्शन डिपार्चर में करना है तो करेक्शन इन डिपार्चर इक्वल टू टोटल एरर इन डिपार्चर इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। ओके,
So this is very important formula. Then next is the second method, balancing of traverse. जैसे कि बाउंड्री रोल में अपन ने देखा है कि लीनियर मेजरमेंट इज इक्वली प्रिसाइज टू द एंगुलर मेजरमेंट, है ना, उसमें दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों, है ना। तो वैसे ट्रांजिट रूल में क्या होता है, it is used to balance the traverse when the angular measurements are more precise than the linear measurement. लीनियर मेजरमेंट से मतलब लेंथ से अगर एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है तब ट्रांजिट रूल यूज करने का, ओके। तो इट इज यूज टू बैलेंस द ट्रैवर्स when the angular measurements are more precise than the linear measurements. Then formula used for the correction in latitude, अभी इसमें अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। करेक्शन फार्मूला यूज फॉर करेक्शन इन लैटिट्यूड, तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड इनटू लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड बाय अरिथमेटिकल सम ऑफ ऑल साइड्स, मींस समेशन ऑफ sides, okay. And formula is for correction in departure of any side equal to total error in departure into departure of that side into arithmetical sum of all sides, okay. Then गेल्स टावर, गेल्स टावर एक टेबल है, इसमें करेक्शन कैसे करना है, द कैलकुलेशन for a closed traverse may be made in the following steps and enter in a tabular form which is known as Gales Travers table. इसमें जो करेक्शंस करना है इसके कैलकुलेशन अलग लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो टेबल के अंदर में कैलकुलेशन करके लिखना पड़ता है। वो गेल्स टेबल कैसे होता है मैं आप वो नेक्स्ट स्लाइड में है, इसके पॉइंट्स पहले अपन देख लेते हैं। The calculations for a closed traverse may be made in following steps and enter in a tabular form which is known as Gales traverse table. First, sum up all the included angles. पूरे एंगल की अपने को सम करना है, एडिशन करना है। Their sum should be equal to, सम कितना होना चाहिए सभी एंगल का, 2n प्लस और माइनस 90 डिग्री। अगर इंटीरियर एंगल है सो 2n प्लस 4 इंटू 90 अकॉर्डिंग as the interior and exterior angles are measured when n is the number of sides of a traverse, okay. If not, apply the necessary correction to the angles so that the sum of the corrected angles will exactly equal to 2n plus or minus 4 into 90. Then calculate the WCB, whole circle bearing of the other lines from the observed bearing of the first line and then corrected included angles, okay. Then from the WCB of line, deduct the reduced bearing of the line and determine the quadrants in which the line lie, okay. जैसे कि अगर from WCB of the line deduct the reduced bearing of that line, ठीक है, मीन होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस बेरिंग अपन माइनस करेंगे और एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, उसके ऊपर से क्वाड्रेंट अपने को पता चल जाएगा, ओके। और ये कैसे निकालने का है ऑलरेडी अपन कंपास में पढ़े हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द फिफ्थ पॉइंट, फ्रॉम द गिवन लेंस and calculated reduced bearing of lines, calculate their latitudes and departures, that is conjugative coordinates, okay. Then add all northing and southing, find the difference between the two sums. Similarly, obtain the difference between the sums of all easting and westings and sum of all westings.
Okay, then apply necessary corrections by using Bowditch rule or transit rule. So the sum of the northing should be equal to sum of the southing, should be equal to sum of the easting, and should be equal to sum of the westing. Okay, from the corrected consecutive coordinates, calculate the independent coordinates of the points so that they all are positive. Then the whole traverse will be lie in the first quadrant. Okay, now see और ऑब्जर्व द गेल्स टावर्स. गेल्स टावर इस टाइप का होता है. पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर का, दूसरा एंगल का होता है. ओके, तीसरा करेक्शन का होता है, देन करेक्टेड एंगल का होता है, फिर WCB, रिड्यूस बेयरिंग, उसके बाद में क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके बाद में लाइन कौन सी है, उसका लेंथ कितना है. ओके, पॉइंट्स और कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स नॉर्थ और साउथ, नॉर्थिंग और साउथिंग अगर है तो दिस इज द लैटिट्यूड, एंड ईस्टिंग वेस्टिंग this is the departure. If the latitude is positive, then it is in northing, and if the latitude is negative, then it is lies in the southing. If the departure is positive, it is lies in easting, and if the departure is negative, then it is lies in westing. Similarly, corrected. Here is the correction. Then calculate the corrected consecutive coordinates, and then we can calculate the independent coordinates of the traverse. So this is the Gale's traverse table. नाउ न्यूमेरिकल ऑन बाउडिच रूल. बाउडिच रूल के ऊपर से एक सिंपल न्यूमेरिकल है, जैसे कि इसमें कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अप्लाई बाउडिच रूल. इसमें अपने को बाउडिच रूल अप्लाई करना है. तो इस टाइप का ये प्रॉब्लम दिया रहेगा. लाइन दिए है ABCD, AB BC CD D है, और उसके लेंथ दिए है. उसके बाद में उसके कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स means north and south means latitude, east और west means departure. So इसका latitude पॉजिटिव है तो नॉर्थिंग, ठीक है, AB का, BC, इस टाइप के पूरा दिया है. ठीक है, so इसमें सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि लेंथ जो है बाउडिच रूल करना है, तो लेंथ का समीशन कर लेंगे. मींस दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स. ओके, देन add the all नॉर्थिंग एंड साउथिंग. नॉर्थिंग से साउथिंग माइनस करेंगे तो जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा इज द एरर. ओके, अगर एरर, अगर जैसे अपन ऑलरेडी अपने को मालूम है बैलेंस करना है, तो एरर अगर निगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव करना है. अगर एरर अगर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या अप्लाई करना है, निगेटिव करना है. ये ध्यान में रखने का. ओके, देन डिपर्चर यहाँ पे ईस्टिंग और वेस्टिंग दिया है. इफ द डिपर्चर इज पॉजिटिव देन इट इज लाइज इन ईस्टिंग. सो ईस्टिंग से वेस्टिंग अपन माइनस करेंगे, क्योंकि जैसे कि लैटिट्यूड में साउथिंग ए माइनस होता है और डिपर्चर में वेस्टिंग माइनस होता है, तो उसको वो माइनस में माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे अपने को एरर मिलेगा. तो लैटिट्यूड का टोटल एरर मिला है अपने को -0.58, और डिपार्चर का टोटल एरर मिला है +1.46. सो इफ द अपने को करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो एरर अगर निगेटिव है तो करेक्शन कैसे करेंगे अपन, पॉजिटिव करेंगे. और डिपार्चर पॉजिटिव का एरर आया है तो करेक्शन अपन क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे. सो नेक्स्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय अप्लाइंग द बाउडिच रूल. बाउडिच रूल का फार्मूला इज फॉर करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर. टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट साइड इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड करेक्टेड latitude of AB.
सो करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू, टोटल कितना आया था, निगेटिव आया था, है ना, निगेटिव आया था। सो 0.58 इंटू ये 250 इज द लेंथ एंड 737 इज द पेरीमीटर। सो ये करने के बाद में अपने को करेक्शन ऑफ ए बी क्या आया है, 0.1967। सो करेक्टेड लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू, ये इतना दिया है अपने को, तो निगेटिव अपना लैटिट्यूड था, तो करेक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, सो करेक्टेड लैटिट्यूड ऑफ ए बी इज 108.1667। ओके, सिमिलरली करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड बी सी इक्वल टू, ये 123 इज द लेंथ ऑफ बी सी एंड 737 is the perimeter of BC. So correction is 0.0968 and corrected latitude of BC equal to, ये इतना दिया है 14.39, उसमें अपन ये ऐड करेंगे प्लस 0.0968। ओके, क्योंकि इसका एरर निगेटिव आया है तो करेक्शन क्या करना है, पॉजिटिव करना है। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ सी डी, ये सी डी निकल गया, इसका करेक्शन, तो देखिए यहाँ पे करेक्टेड लैटिट्यूड ऑफ सी डी, क्योंकि यहाँ पे साउथिंग दिया है इसलिए अपन ने यहाँ पे माइनस लिखा है, -122.97, क्योंकि ये साउथिंग है। ओके, इसलिए ये माइनस आया है और ये प्लस 0.215। सो लैटिट्यूड ऑफ लाइन सी डी इक्वल टू -122.7385। ओके, लिखते समय अगर साउथ के कॉलम में लिखना अगर है अपने को, तो ये माइनस साइन वहां से हट जाएगा, जस्ट अपन 122.7385 लिखेंगे। ओके, सिमिलरली करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ डी ए कितना निकला, 0.085। ओके, और उसका लैटिट्यूड अपने को 0 दिया है ना, मतलब वो ओरिजिन में होगा, है ना, वो पॉइंट ओरिजिन में होगा। सो करेक्शन 0.085। सो करेक्टेड लैटिट्यूड ऑफ डी ए इज 0.085। सिमिलरली डिपार्चर, यहाँ पे पॉजिटिव 1.48 ऐसे निकाले डिपार्चर, तो डिपार्चर 3.37 प्लस 0.49। ओके, similarly correction in departure of BC. Okay, here is the mistake. Okay, here is the mistake. So 3.37 minus, here correct it, 3.37 minus 0.4953 equal to 3.2747. Okay, so corrected in departure of BC equal to 249.57 minus, क्योंकि करेक्शन एरर जो आया था डिपार्चर में वो प्लस 1.46 था, तो यहाँ पे जो करेक्शन करेक्टेड करना है तो अपने को करेक्शन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ये माइनस आएगा, इसलिए ये माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो ये 249। सिमिलरली फाइंड द departure correction in departure of CD and corrected departure of CD will be this 3.6129 and DA also. Okay, so here departure of DA must be -256, मतलब it must be in वेस्टिंग, है ना, वेस्टिंग के कॉलम में होगा, इसलिए ये -256 आया है। ओके, देन so at the last enter all the values in tabular form as shown in next slide. So इस टाइप से देखो, लैटिट्यूड पहले दिया था उसने, ये लेन दिया था, ये लैटिट्यूड दिया था, डिपार्चर दिया था, तो अपन ने जो करेक्शन है, करेक्शन अपन ने पॉजिटिव लिखे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ये डिपार्चर कभी भी
क्या होता है यहाँ पे, ये देखो इसका जो जो टोटल है ना, मीन्स लैटिट्यूड और डिपर्चर, ये ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट किया है इन प्रीवियस स्लाइड्स। ओके, सो इन लैटिट्यूड डिपर्चर, अभी देखो इसमें बैलेंस होने के बाद में ये समेशन लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ डिपर्चर शुड बी इक्वल टू 0, इस टाइप से आना चाहिए, मीन्स बैलेंस। सो इन दिस टॉपिक वी लर्न लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब नॉर्थिंग और साउथिंग, नॉर्थिंग इज पॉजिटिव, साउथिंग इज नेगेटिव। डिपर्चर, डिपर्चर मीन्स ईस्टिंग और वेस्टिंग, ईस्टिंग इज पॉजिटिव, वेस्टिंग इज नेगेटिव। एंड ट्रैवर्स कंप्यूटेशन, ट्रैवर्स कंप्यूटेशन में इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स एंड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट अपने को मीन्स लेंथ अगर फाइंड पॉइंट अगर निकालना है तो ओरिजिन से अगर निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है, और प्रीवियस प्रीसीडिंग पॉइंट से अगर वो निकालना है तो उसको वो कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एंड गेल्स ट्रैवर्स टेबल एंड न्यूमेरिकल्स ऑन बॉर्डिच रूल, इतना अपन ने ये टॉपिक में पढ़ा। सो इन दिस वे वी कैन फिनिश द theodolite surveying. Okay, thank you very much